Yes, we are live. Good morning, everyone. Okay, as planned, we are going to go live at 11:30 every Thursday. So this is our third session of Pediatreat, where we are discussing pediatric cases and approach towards pediatric cases. So today we'll wait for some time till people join us. Yes. So today I'm going to present one pediatric case and we'll discuss the remedy that we have in that case. Okay. One more thing, if you have any queries, people are doing private messages to me. I would request please write it on that Facebook group what all you want me to discuss and what problems you have faced so we can discuss those problems in next session, right? Okay. So I'm going to discuss a case of a child. She's a girl. She's 4.5 years. She had come to the clinic with the complaint of recurrent cold and cough. The mother said every month she falls sick. Every month. For example, she has fallen sick. She's got cold and cough, occasionally fever. They give her allopathic medicines for 5-10 days. She's fine. And again, after 10 days, she's again sick. So this has been going on since a year and a half. And now she decided to take homeopathic medicines. Okay, so because we are on Facebook, we cannot share the video. So I will just try to narrate as much possible that how she was acting. So she came to the clinic. She was like sitting like this and smiling. She was coughing and still smiling, right? I asked her, "What is your name?" She replied. "How old are you?" She replied. And then mother started telling her complaints, right? She was little shy. I asked mother whether she's shy. She said, "Not really. She's not very shy otherwise. Today only she's behaving this way." I said, any change in her behavior when she has cold and cough? This is a very important question because you should know the child in stress. When the child has cold and cough, how the child reacts. I said, not really. She doesn't, there is not much change of her behavior, but she's quiet and she's on herself. She doesn't complain a lot. Okay. And when I asked her questions, she was speaking very softly, like, what is your name? I don't want to tell the name, so probably say it's the name is Nikita. So Nikita, and very slowly and softly. So everything that the child tell, how the child tell, is very very important. In our totality, that is most important than even what mother is telling, right? Okay, so that was the case. I asked okay, what is her nature. She said she's a very happy-go-lucky child, cheerful, all the time happy and playful. And when she's sick, she doesn't really trouble a lot. She doesn't really complain a lot, and she's on herself. In the clinic, also, she was singing her rhymes, and she was, laughing and smiling, and she was fine. So I said, okay, what else? Whatever I asked to the child used to just smile and say very softly. And then I have a curtain in the clinic just पे hot air balloons और कुछ कुछ बना हुआ है, and she was asking mother कि ये क्या है, ये क्या है. तो the mother was explaining that this is hot air balloon, this is sun. अच्छा यहाँ पे क्यों बनाया है? So she was asking all this. So I asked mother, does she ask lot of questions? She said yes, she asked lots of questions. पूरे दिन इसके कुछ ना कुछ questions होते हैं कि ये क्या है, वो क्या है. So she's the one who's asking many questions. And yes, the child was in front of us. The case was hardly of 15 minutes. So this is the case, the child smiling, even while coughing, and she's asking a lot of questions. And during the sickness also, she doesn't complain. Usually she's a cheerful child. Clinic पे भी गाना गा रही थी, अपना हंस रही थी. She was playful, and she doesn't trouble a lot. And she's very hyperactive. She's like एक जगह नहीं बैठ के दिन भर कूदती रहती है इधर उधर. Or yes, this is the case. So any totality that you're coming, any rubrics that you can think of? Anybody who can come up with some rubrics? It's a small case of a 4.5 years old child who's smiling in your clinic, doesn't complain much, doesn't trouble mama. She's hyperactive, she's asking questions. I'll wait for 2 seconds. Playful, okay. Anybody else? Curious, yes, very good.
Smiling. Yeah, here I will like to add something. We should take smiling and all these rubrics during illness. For example, the child comes into the clinic and is not suffering from fever or cough or anything at that moment, and the child smiles. You will not take smiling. But in this case, the child was coughing and was still smiling, so we can take the rubric smiling here. Yeah. Intelligent. Okay. Why intelligent, Dr. Anita? Okay, so here I took, as Nikita also said, that we took smiling, we took curious, we took energy excess children in hyperactivity के लिए जो हम rubric लेते हैं, and I took one rubric which is curious, and I took during illness she's not troubling, she's not asking mother anything, she's on by her is herself. So I took asking nothing for. And one more rubric that I took is cheerful, dancing, laughing, and singing with. She was cheerful, she was dancing, she was singing her songs, and she was smiling. So this is the rubric, and this is the totality I took. Any guesses for the remedy? I'll just check what else I have taken if I missed anything. हाँ, वन मोर थिंग इज दैट मदर सेड कि ये किसी को ज़्यादा मारती नहीं है, क्योंकि अगर मारो तो बोलती है कि इट इज़ नॉट राइट, अगर कोई हिट कर लेगा तो आके बताती है, बट शी डजंट. सो आई ऑल्सो एडेड कंसेंशुअस अबाउट ट्रिफल्स. और एक और चीज़ विच आई मिस्ड इज दैट जब इसको ये होता है, कहीं भी जाती है तो उसको बहुत कॉशियसली हर जगह चलती है, उसको चोट लगने का बहुत डर है, तो शी इज ऑलवेज फियर उसको है कि चोट ना लग जाए, तो आई एडेड फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ. So our totality is energy excess children in curious speech. हाँ, that is one point I missed. Speech जो है यहाँ पे low and soft voice है. She was talking very slowly, तो speech slow. These are very very important that I have been saying from my first session. So the rubrics that we take is usually how the child is responding, what the child is responding. So जहाँ वो धीरे से बोल रही है, इसलिए हमने speech slow, soft, मतलब मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. And I asked mother कि वो ऐसे ही रहती है क्या, तो yes, and I had prescribed her Hyoscyamus 30. Right? Hyoscyamus 30 was not a very often used drugs earlier, but now in pediatric cases I have used it very very often with very very good result. So I'm going to discuss Hyoscyamus. I know people who are from Sehgal method must have used it, but I would like to show the pediatric angle of Hyoscyamus. ओके, सो हायोसाइमस चाइल्ड कैसा होता है? हायोसाइमस चाइल्ड हाइपर एक्टिव होता है. हायोसाइमस इज यूज्ड फॉर masturbation in children, behavioral problems in children, lewdness in children. हायोसाइमस बच्चा कई एंगल से आप देख सकते हैं. एक क्यूरियस बच्चा है, अगर आप क्यूरियस चिल्ड्रन देखें तो सिर्फ हायोसाइमस आती है, बट आई वुड गिव अ वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप हमेशा क्यूरियस बच्चे को हायोसाइमस ना दें. आप क्यूरियस जनरल रूब्रिक लीजिए, बिकॉज इट हैज मेनी मोर ड्रग्स एंड देन प्रॉब्ली यू कैन डिफरेंशिएट इट. राइट, तो एक पॉइंट है जो हायोसाइमस का, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर वील डिस्कस पीडियाट्रिक एलिमेंट. आई नो अडल्ट्स का शायद आपको पता होगा कि उसको फियर बिट्रेड होता है, या कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ इमेजिनरी इंजरी होता है, या उसको फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड है, या डिल्यूजन पॉइजनड है, और आप सस्पिशियस होता है, एंड यू डिफरेंशिएट फ्रॉम सिस्ट्रोमोनियम. पर बच्चों में बहुत अलग तरीके से आप हायोसाइमस को देख सकते हैं. I will discuss the first shade of Hyoscyamus that I have used very oftenly. जब दूसरा बच्चा बॉर्न होता है और पहला बच्चा थोड़ा निग्लेक्टेड होना शुरू होता है, तब जब बच्चे को लगता है कि जेलसी चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन. इसमें दो ही ड्रग्स हैं, हायोसाइमस और इग्नीशिया. अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर बच्चा आके बोले कि यू नो मामा डजंट लव मी, आई डोंट लाइक द सेकेंड सिबलिंग, या आपके अंदर वो जेलिसी का एलिमेंट आपको उस बच्चे के अंदर दिखे, यू कैन, जब दूसरा बच्चा द सिबलिंग इज बॉर्न, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ हायोसाइमस एंड इग्नीशिया. इग्नीशिया कंसेंशुअस बहुत ज्यादा है, इग्नीशिया बच्चे को तकलीफ नहीं देता, पर एंगर जेलिसी इन, किल डिजायर टू जेलिसी इन, रेज जेलिसी इन, इनमें हायोसाइमस इज हार्डली 2-3 ड्रग्स एंड हायोसाइमस इज वेरी वेरी वेल मार्क्ड. तो अगर मम्मी इधर उधर हुई, बच्चे ने उसको मार दिया, धक्का दे दिया, और छोटे बच्चे को जो भी है, या उसका कुर्सी खींच ली, या उसका पालने को,
जब वो ट्रबल करना चाहता है न्यूबॉर्न को आउट ऑफ जेलसी, इट इज ओनली एंड ओनली हायोसाइमस. यू गिव हायोसाइमस 30 एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट. प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, कोल्ड एंड कॉफ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है. सो दिस इज द कोर ऑफ जेलसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हायोसाइमस. आप इस एंगल से दे सकते हैं. दूसरा एंगल हायोसाइमस का ये है कि नेकेड वांट्स टू बी, एक रूब्रिक है, नेकेड वांट्स टू बी हाइपर एस्थीसिया ऑफ द स्किन फ्रॉम. मेरे पास एक बच्ची आती थी और वो दिन भर ऐसे बिना कपड़े पहने घूमती रहती थी. तो मम्मा बोलती थी, तो हर कपड़े के लिए बोलती थी कि चुभता है. She stopped wearing panties. उसकी मम्मी ने बोला मैं 100 ब्रांड्स की लेकर आई, उसको सॉक्स नहीं पहन सकती क्योंकि इसको हर चीज़ चुभती है, हर चीज़. हम लोगों ने 50 तरीके के सॉक्स और 50 तरीके के पैंटीज इसको ला के दी, बट शी डजंट वांट टू वेयर. This is hyoscyamus. Naked wants to be hyperesthesia of the skin from. You should think about this remedy. Here I am telling a pediatric element of hyoscyamus. Okay, so just keep in mind that. Otherwise, hyoscyamus is very very broad and can be used in various shades. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया जेलेसी का. फिर दूसरा एक बचा होता है क्यूरियसिटी. हमने जैसे पहले केस में भी बताई, हायोसाइमस इज वेरी वेरी क्यूरियस. इन अडल्ट यू विल सी कि बहुत क्यूरियस होते हैं, बीमारी के बारे में बहुत सारा जानना चाहते हैं, पर जब आप उनको बोलो कि ये टेस्ट करा लो तो वो टेस्ट नहीं कराना चाहते क्योंकि लाइट शंस में है. उनको डर क्या होता है, बिट्रेड का, कोई धोखा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना पता चल जाए कि तबीयत, तो उनको लाइट नहीं चाहिए होती है. राइट, ओके. सो उसके बाद और एक बच्चा होता है जो आपके क्लिनिक में आके आप उससे बात करो, ऐसे ऐसे मुंह बना रहा होता है. मेरे पास 2-3 बच्चे थे वो. आप उस समय क्या रूब्रिक लेते हैं? आप उनसे बात करने जाओ, वो फेसेस बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके फेसेस बनाते हैं. उस समय आप क्या रूब्रिक लेते हैं? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बच्चे से आप बात करने जा रहे हो और वो अजीब अजीब से फेसेस बना रहा है? I know there will be some internet issues today because of too much of rain, but I'll post this video so that you can see it again. Okay? Yes, grimaces. Grimaces के साथ एक और रूब्रिक है, ill mannered faces makes ill mannered faces. अजीब अजीब से, जैसे ill mannered ऐसे बच्चे मुंह बनाते हैं, उसमें सिंगल हायोसाइमस है. सिंगल है कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, but yes, 1 second. Yes, it's a single remedy and I have used it in many cases and it really works wonders. So please write these tips of hyoscyamus कि बहुत curious होगा, hyperactive होगा, ill-mannered faces बनाएगा, मुंह बनाएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, एक जगह नहीं. हायोसाइमस बहुत जिद्दी होता है. इट इज़ एन ऑब्स्टिनेट रेमेडी. दूसरी बात, फालतू की बातों पे लाफिंग फुलिश, लाफिंग ल्यूडिक्रस थिंग्स सीन. ल्यूडिक्रस मतलब फनी, हर चीज उनको फनी लग रही है, आपको लगता है फालतू में हंसे जा रहा है. हर हंसने वाला बच्चा बेलोडोना नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द चाइल्ड. राइट, तो लाफिंग ल्यूडिक्रस थिंग्स सीन्स, लाफिंग फुलिश, लोकेसिटी चिल्ड्रन, इनमें 6-7 ही रेमेडी हैं. बहुत बातें करते हैं. लैकिसेस में भी जेलिसी बहुत मार्क्ड है, पर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. ग्रिमेसेस सिर्फ मुंह बनाना है निकिता, और इल मैनर्ड फेसेस जो है, ग्रिमेसेस कुछ भी हो सकता है. आप ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हो, और इल मैनर्ड जब आप मुंह चिढ़ा रहे हो, अजीब अजीब से फेसेस बना रहे हो. तो ग्रिमेसेस में और भी दवाइयां हैं, पर इल मैनर्ड फेसेस मेक्स में ओनली 1 रेमेडी है. राइट, सो हाँ, तो आप लोकेसिटी बहुत ज़्यादा है हायोसाइमस को. हायोसाइमस में ल्यूडनेस है. मैस्टरबेशन इन चिल्ड्रन में आई हैव यूज्ड हायोसाइमस विद वेरी गुड रिजल्ट्स. हायोसाइमस बच्चा हमेशा बड़ा पॉपुलर होगा, अजीब अजीब से किस्से सुनाएगा लोगों को. उसमें क्यूरियोसिटी की वजह से वो लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें हायोसाइमस में देखी जाती हैं. हायोसाइमस हाइपर एक्टिव होता है, इसलिए वो रन्स अबाउट करता रहता है. एक और बहुत पॉइंटर मैं आपको देती हूँ कि श्रीकिंग चिल्ड्रन इन स्लीप ड्यूरिंग बट डज नॉट ओपन द आईज. मतलब वीपिंग चिल्ड्रन इन सॉबिंग एट नाइट एंड डज नॉट ओपन द आईज. ऐसे 3-4 केसेस मैंने देखे जब वो रात पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा रात को बहुत रोता है, और हम उठाते हैं, हम पूछते हैं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बोलता, और आंखें बंद करके रोता ही रहता है, आंखें भी नहीं खोलता.
You know, this is singular hyoscyamus. These are the pointers which you should know, because if you know then you can understand it as hyoscyamus. अगर आपको पता ही नहीं है कि रात को बच्चा रो रहा है, आंखें बंद करके चिल्लाए जा रहा है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, वो कुछ नहीं रिप्लाई करता क्योंकि वो आंखें बंद करके ही रो रहा होता है. दिस इज सिंगुलर हायोसाइमस. एंटिक्स प्लेइंग. एंटिक्स एक जने ने पूछा है कि आप इसको एंटिक्स प्लेइंग के साथ कैसे डिफरेंशिएट करोगे. एंटिक्स प्लेइंग जो होता है उसमें वो अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है, राइट. वो कुछ खेल कर रहा है या थोड़ा सा कुछ करेगा, स्माइल करेगा अपने ऊपर अटेंशन सीक करने के लिए. और जो ग्रिमेसेस है वो अजीब अजीब से मुंह बनाना है. ग्रिमेसेस इज मुंह बनाना. अगर बच्चा ऐसे भी मुंह बना रहा है, ये भी ग्रिमेसेस है. पर अगर मुंह चिढ़ा रहा है, अजीब सा कर रहा है, दैट इज इल मैनर्ड फेसेस मेकिंग. एंटिक्स प्लेइंग में जरूरी नहीं है कि इल मैनर्ड हो. बच्चा कुछ भी कर सकता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, राइट. ओके, तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वीपिंग चिल्ड्रन इन सॉबिंग एट नाइट विदाउट ओपनिंग द आईज, यू नो, इट इज सिंगुलर हायोसाइमस. सो यू शुड नो. आप जब कोई ड्रग पढ़ते हैं उसको आपको पीडियाट्रिक एंगल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब आप हायोसाइमस पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ्यू रूब्रिक्स आपको पीडियाट्रिक एंगल से मिलेंगे विच यू शुड लर्न टू स्टडी एंड लुक. अगर आप बड़ों से, तो बच्चा आके नहीं बोलेगा मेरे को डर लगता है, मेरे को धोखा ना हो जाए या बीमारी मुझे धोखा ना दे दे. तो फियर बिटरेइंग आप बहुत छोटे बच्चों में डायरेक्टली नहीं देख सकते. तो आप क्या देख सकते हैं कि बच्चा कंप्लेन नहीं कर रहा. क्यों नहीं कंप्लेन कर रहा? क्योंकि उसको लगता है कि मम्मी डॉक्टर के पास ना ले जाए. डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? इंजेक्शन लगा देंगे, कड़वी कड़वी दवाइयां दे देंगे, राइट. तो रूब्रिक है आस्किंग नथिंग फॉर, स्माइलिंग. हायोसाइमस बच्चा हाई स्पिरिटेड रहता है. उसको कुछ लग भी जाए ना, उठ के तुरंत खड़ा हो जाएगा. उसको बीमारी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रही होती है. बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं. ओके, तो when you see any drug, मतलब जैसे हमने एगारिकस डिस्कस किया, आज हम हायोसाइमस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उसको पीडियाट्रिक एंगल से देखना आना चाहिए कि अरे बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो क्यूरियस है बच्चा, बीमारी में भी मुस्कुरा रहा है, स्माइलिंग है, हाई स्पिरिटेड है, ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कंप्लेन कर रहा है बच्चा? क्या प्रॉब्लम? ओपीएम भी आस्किंग नथिंग फॉर में है, पर ओपीएम कंटेंटेड है. ओपीएम को हायोसाइमस कंटेंटेड नहीं है. हायोसाइमस को अंदर से डर रहता है पर अफेक्टेशन रहता है. अफेक्टेशन क्या होता है कि हमें अंदर से तो डर है पर हम ऊपर से दिखा रहे हैं, ओ आई एम फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू नो, आप उससे पूछो आपको डर लगता है इंजेक्शन? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता. अच्छा लगा देती हूँ, अरे फिर रोने लग जाता है. यू नो, तो अफेक्टेशन है हायोसाइमस में, वेरेट्रम में अफेक्टेशन है, स्ट्रेमोनियम में अफेक्टेशन है. आप अब इन अफेक्टेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये हम You have to study these drugs to understand कि हायोसाइमस का अफेक्टेशन कैसा है, स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन कैसा है, क्यों हायोसाइमस अफेक्टेशन में रहता है, राइट. ठीक है, ओके. तो ये बच्चे फीवर में भी हैप्पी रहेंगे. माओ से पूछो कुछ करते हैं तो एक रूब्रिक है डिलीरियम, गे, चीयरफुल, फीवर ड्यूरिंग. मतलब फीवर के टाइम पे भी खुश रहते हैं, प्लेफुल रहते हैं, हंसते रहते हैं. Jealousy is very very important in hyoscyamus and you should know how to differentiate with the jealousy of lachesis. मैंने आपको इग्निशिया के साथ डिफरेंशिएट करके बताया कि इग्निशिया कुछ भी हो जाए ना फिर भी ध्यान रखता है अपने छोटे वाले बच्चे का, कितनी भी जेलसी हो उसको. पर हायोसाइमस में रेज रहता है, वो दूसरे वाले को ट्रबल कर सकता है. बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है. अभी आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस तो आई केम अक्रॉस अ रूब्रिक स्किज़ोफ्रेनिया चिल्ड्रन इन हायोसाइमस. बच्चों में मैंने हायोसाइमस बहुत जगह यूज़ करी है. जब आपको लगे कि बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है या अजीब सी हरकतें कर रहा है, फालतू में हंस रहा है जहाँ नहीं हंसना है, ज़िद्दी है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो यू कैन थिंक ऑफ हायोसाइमस. हायोसाइमस बच्चा ना चेयर पे बैठता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, रन्स अबाउट रूम इन वॉन्डरिंग डिजायर टू वॉन्डर. और हायोसाइमस बच्चा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अगर क्लिनिक पे आता है ना तो सपोज ये आपका ग्लास रखा है तो पहले ग्लास को टच करेगा, लैपटॉप को टच करेगा, स्टेथोस्कोप को टच करेगा. जब ऐसे बहुत चीज़ें टच करता है बच्चा, उसमें है 15-20 रेमेडीज, तो हम लेते हैं टचिंग इम्पेल टू टच थिंग्स चिल्ड्रन इन, राइट. तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए. टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी है. आई स्टार्टेड लुकिंग एट द रूब्रिक्स जो चिल्ड्रन में है. तो आप सर्च इंजन में चिल्ड्रन डाल सकते हो और आप सारे रूब्रिक्स सर्च कर सकते हो. कई बार आप चिल्ड्रन ना डाल के भी आप जब रेमेडी पढ़ें तो आप जैसे आई ऑलवेज मेक नोट्स एंड मैं जो भी आंसरिंग के रूब्रिक्स हैं, लाफिंग के हैं, लुकिंग के हैं, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखती हूँ. इसलिए आई स्टार्टेड कैचिंग ऑल दीज रूब्रिक्स. ओके, हायोसाइमस बच्चा साफ बोलता है, ट्रुथ टेलिंग प्लेन में है, नेकेड डिजायर टू बी में है,
और अग्रेसिव होता है, उसको जिससे जेलसी होती है उसको बहुत मारपीट करता है। स्ट्राइकिंग में है, स्ट्राइकिंग बायस्टैंडर एक्ट। बायस्टैंडर मतलब जो सिर्फ खड़ा हुआ है, उसने कुछ किया नहीं। अब एक बच्चा था, वो उसकी मम्मी कंप्लेन करती थी कि असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं उनको फालतू मार देता है, क्यों मार रहा है पता नहीं। तो दिस इज स्ट्राइकिंग बायस्टैंडर्स एक्ट। आपके साथ में जो खड़ा है उसको आपने मार दिया। स्ट्राइकिंग डिजायर टू स्ट्राइक, ठीक है। टेम्पर टैंट्रम्स में होते हैं, बच्चे फैल जाते हैं। एक रूब्रिक था कि फुलिश समथिंग, इंसैनिटी, फुलिश, मेरे को एग्जैक्ट रूब्रिक याद नहीं आ रहा, नॉनसेंस आइज विद ओपन, मतलब उसको पता है कि ये नहीं हो सकता, वो फिर भी उसी पे अटका हुआ है, यू नो। तो वी कैन थिंक ऑफ, मतलब हायर साइंस को लॉजिक जरा कम रहता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। Young, I have told you, young children talking about sex, masturbation in children, lewdness. So this is hyoscyamus, right? We have discussed in short about hyoscyamus. Yes, it's been 20 minutes. I would ask you all if you have any questions, and if you have any experience with hyoscyamus children. हाइसाइमस और स्ट्रेमोनियम और लैक्सिस को हम बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेरे को बच्चों में तो बहुत डिफिकल्टी नहीं आई है हाइसाइमस और स्ट्रेमोनियम को डिफ्रेंशिएट करने में, बट अडल्ट में बहुत सारे हमारे टीचर्स ने भी डिफ्रेंशिएट किया है कि हम हाइसाइमस और स्ट्रेमोनियम को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हाइसाइमस, आई विल गिव यू सम टिप्स ऑफ अडल्ट हाइसाइमस ऑल्सो। ओके, सो हाइसाइमस अडल्ट का कोर रूब्रिक है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, मतलब मुझे धोखा ना हो। बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, हाइसाइमस आदमी को आप बोलो कि ये एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ दो आप, जैसे मैं बोलती हूँ, यस आई एम डिस्कसिंग दैट कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यार ये एलोपैथिक दवाइयाँ, एक बीपी का पेशेंट आया और मुझे लगा है वेरी श्योर ऑफ द मेडिसिन, और मैं बोलूँ कि आप ये बीपी की दवाइयाँ बंद कर दीजिए, तो वो हमेशा बोलते हैं नहीं यार मैं दवाई नहीं बंद कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसको दवाई लेना, अब उसके लिए बेड है, वो जिस तरीके से चाहता है वो उसी तरीके से रहना चाहता है। तो बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, कुछ तकलीफ ना हो जाए, कुछ ज्यादा कुछ ना हो जाए, तो फियर बिट्रेड, कोई धोखा ना दे दे ये बीमारी हमें, राइट। ये हाइसाइमस है। हाइसाइमस का जो अडल्ट होता है उसको फियर इंजरी, डिल्यूजन पॉइजनड, फियर पॉइजनड ऑफ बीइंग, मतलब ये दवाइयाँ नुकसान ना कर दे मेरे को, कुछ नई प्रॉब्लम ना इनसे खड़ी हो जाए, राइट। लाइट शंस में है, क्यूरियोसिटी जैसे बच्चों में है वैसे अडल्ट में क्यूरियोसिटी, वो बहुत पढ़ाई करेगा उसकी बीमारी क्या, पर आप उसको बोल दो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करा देंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा, राइट। तो लाइट शंस इज हाइसाइमस, वेयर स्ट्रेमोनियम जो है लाइट डिजायर में है, राइट। हाइसाइमस को किसी पे विश्वास नहीं होता, वो अपने सगे का भी नहीं होता। आप स्ट्रेमोनियम हमेशा अपने जानकार, मतलब जो मेरा रेगुलर डॉक्टर है मैं उसी को दिखाता हूँ, राइट। क्लिंगिंग में है, ग्रास्प एट अदर्स, कैरेट डिजायर टू बी, दोनों ग्रोपिंग इन डार्क में है। ग्रोपिंग इन डार्क क्या होता है, सपोज मुझे कोई रैश आ गया और मैं सोच रही हूँ यार क्यों आया होगा रैश, मैंने कल ये खाया था उससे तो नहीं आया, या मैंने ये सोप यूज किया था उससे तो नहीं हो गया ये रैश, या कुछ। सो आप अंधेरे में ठिठोर रहे हो, आप टटोल रहे हो कि क्यों हो गया मुझे ये रैश, यू नो, दिस इज ग्रोपिंग इन डार्क। उसमें ओपियम, हाइसाइमस, स्ट्रेमोनियम ऐसी रेमेडीज है, पर स्ट्रेमोनियम क्लिंगिंग में है, हाइसाइमस सस्पिशन में है, हाइसाइमस को लगता है फियर पीपल ऑफ में है, डिल्यूजन स्नेक इन एंड अराउंड में है, उसको लगता है सब धोखा देंगे, कोई सगा नहीं है यहाँ पे, सब धोखा देंगे, मेरी बीमारी भी मुझे धोखा दे सकती है। इसलिए हाइसाइमस कॉल्स फॉर एब्सेंट पर्सन, कॉल्स फॉर समवन, मतलब कोई नए इंसान के लिए कॉल करता है जिसको वो जानता नहीं है, क्योंकि हाइसाइमस किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है। हाइसाइमस का ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेमोनियम का नहीं। स्ट्रेमोनियम को लाइट चाहिए, फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस एग्रेवेट, अगर डार्कनेस क्या मतलब बीमारी का डार्कनेस, हमें पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है, ये स्ट्रेमोनियम को बहुत परेशान करता है। तो स्ट्रेमोनियम कहता है यार टेस्ट करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब स्ट्रेमोनियम ग्रोप करता है तो स्ट्रेमोनियम लाइट डिजायर में जाता है और हाइसाइमस लाइट शंस में जाता है। स्ट्रेमोनियम अपने जान पहचान के लोगों पे क्लिंग करता है, अपने नोन डॉक्टर पे, कि यार ये डॉक्टर पहचान का, डॉक्टर साहब आप ठीक कर दो, मुझे तो आपसे ही ठीक होना है। क्लिंगिंग, ग्रास्प एट अदर्स, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। हाइसाइमस अपने जान पहचान के डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं करता, उसको तो मैंने कि धोखा ना दे दे। डिल्यूजन सोल्ड बीइंग में हाइसाइमस है। सोल्ड बीइंग मतलब यार लोग तो मुझे बेच खाए, यू नो, मेरे सारे लोगों ने मेरा फायदा उठा दिया, दिस इज सोल्ड बीइंग।
ओके, फिर उसके बाद हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक तो मैंने ये तरीका बताया कि हायोसाइमस हमेशा टेस्ट नहीं कराना चाहता, स्ट्रेमोनियम एक है डिल्यूजन सीज्ड बीइंग में हायोसाइमस है कि सब बंद गया है, चाहे ये साइकिल का पहिया कैसे जाम हो जाता है वैसे जाम हो गया है। तो इसमें 3 रेमेडीज हैं, हायोसाइमस है, फॉस्फोरस है और कैंथारिस है। यस, तो हायोसाइमस का जब सब कुछ जाम हो जाएगा या सब कुछ रुक जाएगा तो हायोसाइमस क्या करेगा? हायोसाइमस हाई स्पिरिटेड में है, डिल्यूजन वॉर बीइंग एट, यार मैं सालों से इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, टॉकिंग बैटल्स ऑफ, मैंने इस बीमारी के साथ ऐसा किया, मैंने इसको दिखाया, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, यू नो। तो और फास्फोरस क्या करता है? हेल्पलेस में चला जाता है, यार कुछ नहीं हो सकता, अब क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, जो मेरे को नहीं चाहती हूँ मैं करूँ वो भी मैं करने लगती हूँ, ये फास्फोरस है। तो जब सब जाम हो जाता है, सब अटक जाता है, तो हायोसाइमस फाइट करता है, वॉर में है, फाइट वॉन्ट्स टू बी में है, हायोसाइमस फास्फोरस हेल्पलेस में है, और कैंथारिस क्या है? डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, मतलब वो हेल्प मांगता है लोगों से। ओके, बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहे हैं, हायोसाइमस लैकिसिस, हायोसाइमस स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस एगैरिकस। सी बहुत सारी रेमेडीज हैं हाइपर एक्टिविटी में, तो वन डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बट यस वी विल ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट ईच रेमेडी विद अदर। ओके, और दूसरी बात, आई लॉस्ट सर्टेन ट्रैक, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो दिस इज द जर्नी ऑफ हायोसाइमस एंड दिस इज द वे हाउ स्ट्रेमोनियम रिएक्ट्स। हाँ, डिल्यूजन सीज में भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो ये डिफ्रेंशिएशन वी ऑल शुड नो कि हम कैसे कैंथारिस को हायोसाइमस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आपको एक रूब्रिक में दिख जाए कि भैया ये तो सीज्ड है, तो आपके पास 3 ही दवाइयाँ हैं, आपको 3 ही दवाई डिफ्रेंशिएट करनी है ना, तो इट्स मच ईजियर। सो अगर आपको जस्ट ग्रोपिंग इन डार्क मिल जाए कि भैया ये तो टिटोल रहा है कि अंधेरे में क्या प्रॉब्लम है, तो आपके पास वही 5-6 रेमेडीज हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और आपको फिर वो हर रेमेडी का ग्रोपिंग इन डार्क आना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए, है ना। और एनीथिंग एल्स? I wanted my session to be short and concise because I don't want to talk for one hour, और उसमें I've seen lot of videos, no offense to anybody, कि हम बहुत सारी लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं पर उसमें सीखने जैसा बहुत कई बार कम हो जाता है। तो आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोज ओनली फॉर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, और उसमें हम मैक्सिमम उस रेमेडी के बारे में, उसकी डिफ्रेंशिएटिंग रेमेडीज के बारे में सीख पाएँ। तो जितने मैंने आज आपको रूब्रिक्स बताए हैं हायोसाइमस के, और आपको धीरे धीरे समझ में भी आया होगा कि हाउ आई लुक टू पीडियाट्रिक केसेस, जिसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत रोल है, आंसरिंग का बहुत रोल है। एक रूब्रिक है आंसरिंग मोनोसिलेबल इन नो टू ऑल क्वेश्चन। आप उससे कुछ भी पूछो वो बोलता है नहीं। भूख लग रही है? नहीं। आपको दर्द हो रहा है? नहीं। आपको कुछ तकलीफ हो रही है पैर में? नहीं। क्यों नहीं बोलता है? उसके पीछे अगेन फियर ऑफ बिट्रेइंग और ये सब है। तो ये हायोसाइमस है। तो आंसरिंग पे, लुकिंग पे, स्माइलिंग हायोसाइमस की, हाई स्पिरिटेड क्यों होता है, अफेक्टेशन, आप जब उस तरीके से रूब्रिक्स को देखने लगेंगे तो आप उसको पीडियाट्रिक एंगल से समझ पाएंगे। हायोसाइमस के मेरे पास बहुत सारे केस हैं, इनफैक्ट सब लोगों के पास होंगे जो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और देन प्रॉब्ली वी कैन, दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द रेमेडीज थ्रू पीडियाट्रिक एंगल। हम लोग जब रेमेडी पढ़ते हैं या इग्निशिया पढ़ते हैं या स्ट्रेमोनियम पढ़ते हैं तो कई बार हम पहचान नहीं पाते कि इनके बच्चे कैसे होंगे। स्ट्रेमोनियम का एक रूब्रिक है, श्रीकिंग चिल्ड्रन इन वेक्स अप एट नाइट एंड क्लिंग्स टू दोज नियर बाय। जैसे हमने बड़ों का डिस्कस किया, वैसे ही बच्चों में रात को उठेगा, एकदम से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और फिर जो पास में होता है उसको एकदम पकड़ लेता है। हायोसाइमस का हमने क्या बताया कि श्रीकिंग चिल्ड्रन इन या वीपिंग चिल्ड्रन इन नाइट विदाउट ओपनिंग द आइज, राइट। तो आप पूछो उनसे कि भैया रात को आंख खोलता है या सिर्फ चिपक जाता है किसी से, अगर यू कैन डिफरेंशिएट दिस वे। ओके, तो अगर आपको ये रूब्रिक भी मिले कि क्लिंग टू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेमोनियम में बहुत क्लिंगिंग रहती है। स्ट्रेमोनियम का बच्चा एक रूब्रिक है, हाँ, जो मैंने एक और बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एक रूब्रिक है एस्केप डिजायर टू श्रीकिंग विद। जैसे बच्चा रूम में आया, हाँ, स्ट्रेमोनियम का ये रूब्रिक है, बच्चा रूम में आया, उसको रूम के बाहर जाना है, तो वो जोर जोर से उंगली दिखाते हुए कि बाहर जाना है और चिल्ला रहा होता है और बाहर की तरफ उंगली दिखा रहा है, तो मतलब वो एस्केप करना चाहता है। क्यों एस्केप करना चाहता है स्ट्रेमोनियम बच्चा? क्योंकि स्ट्रेमोनियम को फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड है, फियर डॉक्टर्स है, उसको इंजेक्शन से डर है, राइट।
हाइसोसाइमस को भी डर रहता है पर वो दिखाता है कि डर नहीं है। अफेक्टेशन में, अफेक्टेशन स्ट्रेमोनियम में भी है, पर क्या चीज ओवर पावरफुल कर रही है और कब अफेक्टेशन स्ट्रेमोनियम का आएगा और कब अफेक्टेशन हाइसोसाइमस का आएगा, ये आपको हमें समझना है। ओके, सो हमने स्ट्रेमोनियम का ये रूब्रिक डिस्कस किया, तो इस तरीके से आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेमोनियम है, कि हाइसोसाइमस है, कि एगारिकस है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर रेमेडी दैट यू वांट मी टू डिस्कस, जिसका आपको लगता है कि पीडियाट्रिकली बहुत यूज होती है और आपने केसेस नहीं देखे हैं? इग्निशिया को डिफ्रेंशिएट करना, इग्निशिया ना इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट पे है, बहुत ही कंसेचुअस है, उसको जेलिसी रहेगी बिना न्यूबॉर्न से तो उसको तकलीफ नहीं देगा। वो कुछ भी करके, वो उससे पूछो कि आपको लगता है कि मम्मी वो नहीं करती हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे लगता है, पर वो कोई तकलीफ नहीं देता है। ये जेलिसी ऑफ हाइसोसाइमस और इग्निशिया की अलग है। ओके, एनीथिंग एल्स? बीमारी कोई भी हो, र्यूम, ओके, हम र्यूम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। र्यूम का एक इम्पॉर्टेंट जो सबको पता है, फिजिकल्स तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होंगे र्यूम के, बट र्यूम में एक रूब्रिक है, कैप्रेशियस चिल्ड्रन इन फूड फॉर। र्यूम का बच्चा 10 खाना बनवा लेगा कि मम्मी शीरा बना दो, अभी आप पकोड़े बना दो मेरे लिए, पर आप जब उसके पास लेकर आओगे तो खाएगा नहीं, उसको 10 चीजें चाहिए होती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक दैट आई फाउंड इन र्यूम। और र्यूम का माइंड हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लाइकोपोडियम। एक और चीज मैं यहाँ पे याद दिलाऊंगी कि जब लोग बोलते हैं ना कि एक रूब्रिक है बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन, गुड एट होम, गुड आउटसाइड बट गुड एट स्कूल बट नॉट एट होम, ऐसे एक रूब्रिक है। उसमें लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलिनम और थूजा, शायद 2-3 ही दवाइयां हैं, पर ये मैंने बहुत जगह गलत लेते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि जब बोले ना यार यही शर्मा रहा है, घर पे तो बड़ा मस्त रहता है, मस्त रहता है, राइट? बिहेवियरल इश्यूज नहीं है। आप ये रूब्रिक कब लेंगे? जब आपको लगे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में, राइट? बहुत सारे लोग अरे बाहर शर्मा रहा है, घर पे अच्छा है, घर पे शेर है तो लाइकोपोडियम दे देते हैं। ऐसे नहीं देना है। जब आपको बिहेवियरल इश्यूज दिखें और देखें कि बाहर तो वो एकदम पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं यार स्कूल में तो बहुत वेल बिहेव्ड है, कभी जिद नहीं करता, सब टीचर तारीफ करती हैं, थोड़ा शाय है, थोड़ा स्टेज फियर है, पर घर में तो बहुत तंग करता है, बहुत जिद्दी है, बहुत। तो जब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिखें तब आप लाइकोपोडियम सोच सकते हैं उसमें। बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन, गुड एट स्कूल बट ट्रबल्स एट होम, ऐसे करके एक रूब्रिक है। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू से, बीमारी कोई भी हो, यूटीआई हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, कैंसर हो, या एज सिंपल एज कोल्ड एंड कॉफ हो, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड देन गिव द रेमेडी, राइट? लाइकोपोडियम ऑल्सो वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम, बिकॉज लाइकोपोडियम बहुत लोग बोल रहे हैं, तो लाइकोपोडियम र्यूम वी कैन take step by step one remedy. Lycopodium is also very vastly used in children pediatric cases. Lycopodium को सीखने की बड़ी इच्छा होती है, learning desire to learn में लाइकोपोडियम और सिलिका है। लाइकोपोडियम बच्चा अपने काम की तरफ बहुत सिंसियर रहता है, आप उसको होमवर्क कभी भी मिस नहीं करेगा, तो उसमें सिर्फ लाइकोपोडियम और सिलिका है जो होमवर्क बच्चे मिस नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों में देख सकते हो और फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये बच्चा किस तरफ जाता है। अगेन आई वुड से यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन सिंगल रूब्रिक ऑल्सो, बट जैसे क्यूरियस चिल्ड्रन ले लिया और आपने हाइसोसाइमस दे दी, इसे मत करिए। क्यूरियस बहुत बच्चे हो सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी क्यों है, कहाँ से आ रही है, इसलिए आप जनरल रूब्रिक ले। अनटिल अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट यू नो दैट सिंगुलर रूब्रिक, यूज इट विद अ कॉशन, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप टोटालिटी बनाएं, आप बच्चे को अंदर से समझें कि ये हाइपर एक्टिविटी क्यों है, ये बच्चा बीमारी में क्या कर रहा है, क्यों स्माइल कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है, पल्सैटिला का बच्चा क्यों क्लिंग करेगा, स्ट्रेमोनियम का बच्चा क्यों। और एक बेसिक वो मत बनाइए कि अभी ये जो हाइसोसाइमस मैंने आज केस, ये क्लिनिक पे शांति थी, ये कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का बच्चा नहीं था, तो शांत बच्चे को भी आप हाइसोसाइमस दे सकते हैं और बहुत इरिटेबल बच्चे को भी पल्सैटिला दे सकते हैं, राइट? तो पल्सैटिला क्यों इरिटेबल होगा ये आपको समझना पड़ेगा। एक बेसिक फिक्सिटीज मत बताइए कि भैया कैमोमिला तो हमेशा ही हंगाम, हो सकता है आपके क्लिनिक पे शांत हो पर जब उसको तकलीफ होती है तो वो एग्जैजरेशन में जाता हो। बेलेडोना इन हाइसोसाइमस की एक्टिविटी, बेलेडोना इज इन प्लेफुल,
बेलेडोना इज इन रूब्रिक लिबर्टिनिज्म. बेलेडोना को खुला खेलना, उसको बंदिश पसंद नहीं है, उसको फ्रीडम चाहिए. तो बेलेडोना का बच्चे एंटिक्स प्लेइंग में है, पर इल मैनर्ड फेसेस में नहीं है. बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में बेलेडोना नहीं है, राइट. बाइटिंग में दोनों दवाइयां, पर बेलेडोना खेल खेल में बाइट करता है. हायोसाइमस जो है एक रूब्रिक है जो सिंगुलर है. बाइटिंग disturb him, biting people, disturb him, ऐसे कुछ तो रूब्रिक है. जो भी हायोसाइमस बच्चे को डिस्टर्ब करेगा उसको काट लेता है. तो हायोसाइमस के अंदर बहुत रिवेंज है, विंडिक्टिव है, स्पाइटफुल है, स्पिट्स एट अदर्स है. बेलेडोना ऐसा नहीं है. बेलेडोना का खेल इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है. बेलेडोना अपनी मस्ती में रहता है. बेलेडोना को कब प्रॉब्लम होती है, जैसे एक रूब्रिक है नाइव, NAIVE, उसमें बेलेडोना हायोसाइमस दोनों है. पर हायोसाइमस नाइव, इंटेलिजेंट बट वेरी, ऐसे है उसका आगे क्लासिफिकेशन. तो बेलेडोना को कब प्रॉब्लम होती है बेलेडोना बच्चे को, जब उसकी फ्रीडम में, उसके प्लेफुलनेस में वो बीमारी हिंड्रेंस कर रही होती है, राइट. अदरवाइज उसको, वो तो प्लेफुल में रहता है, उसको गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग में है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है बीमारी से. जब उसकी फ्रीडम इनहिबिट होने लग जाए, जब वो खेलने ना जा पाए, या जब बड़ा इंसान जो फ्रीली कर रहा था, यार अब तो मैं बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा, या तो अब मैं ये नहीं कर पा रहा, तब बेलेडोना आपके पास आएगा. वरना बेलेडोना फ्रिवलसनेस में है, बेलेडोना को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए एक रूब्रिक है सेंसिटिविटी ऑल्टरनेटिंग विद श्रीकिंगनेस, मतलब नहीं, सेंसिटिव ऑल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, या इंडिफरेंस ऑल्टरनेटिंग विद श्रीकिंग. मतलब पहले तो फ्रिवलसनेस में रहेगा, और जब उसको एकदम से पता चलेगा ये है, फिर एकदम श्रीक करता आएगा, बेलेडोना है, राइट. ओके, so I think we have taken the session for 35, 37 minutes, 40 minutes. I hope this activity is useful to all of you. We'll try to make as many फ्रॉम माई साइड, जितनी मैंने ये 15-16 साल में नॉलेज गेन करी है, जो एक्सपीरियंस गेन करा है, हम आपके साथ शेयर करेंगे. एंड आई रियली विश दैट यू ऑल्सो कम. नॉलेज इज वन थिंग, कि हम जितना शेयर करेंगे, हम प्रॉब्ली उतने ही लोगों को, उतने ही बच्चों को ठीक कर पाएंगे, उतने ही होम्योपैथी पे बिलीव स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. एंड द ओनली मोटो ऑफ दीज प्रेजेंटेशंस एंड सेशन इज टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, टू एजुकेट. जो लर्निंग है वो हम शेयर कर पाएं, एंड दैट इज द ओनली मोटिव. इसका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं इस ग्रुप से हूँ, मैं उस ग्रुप से, मैं इसकी बात नहीं करूँगी. कोई भी जिसके पास अच्छे केस हों, जैसे मैंने पहले बोला, सिंगुलर मेडिसिन के केसेस हमें चाहिए, जो क्लासिकल तरीके से प्रैक्टिस करते हो, कैन कम forward and we can discuss cases and remedy. So next time, probably, as people have asked lycopodium, I can share a lycopodium case, and I can share the experience of lycopodium. I would like if you all also study lycopodium. बहुत सारे लोग पूछे कि कौन सी बुक पढ़ें. आप बुक कोई भी पढ़िए, आप सिर्फ नजरिया ऐसा रखिए, या उसमें लिखिए ऐसी चीजें जो आपको बच्चों में दिखती हैं, राइट. So it was great sharing with you all, and thank you for all the appreciation and all the जो आप लोग हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये करिए, या आपके वीडियो से हमें हेल्प मिल रही है. आई एम सो ग्लैड. लास्ट वीडियो को more than 6,000 views थे. आई एम absolutely elated and happy, and happy to share everything. So see you all next Thursday at 11:30. Okay, bye.